ہمارے جیالے جناب فیصل میر صاحب نہایت قابل احترام، پاسٹر ولسن اصغر صاحب، فیصل میر صاحب کی تمام ٹیم جو یہاں موجود ہے پنڈال میں اور سٹیج پر، یہاں موجود میرے بھائی قاسم گیلانی صاحب، ہماری بہن ہما، عائشہ، تمام جو بہنیں پنڈال میں موجود ہیں، بزرگان، پارٹی کے کارکنان، عہدیداران، ہمارے سینئرز، کامریڈز، میڈیا کے حضرات، بہنیں، بھائی، السلام علیکم۔ نعرہ بھٹو، نعرہ بلاول۔ سب سے پہلے تو میں فیصل میر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اس انتخابی حلقے میں بلایا اور آج یہاں پر 4 یوسی 223، یوسی 224، یوسی 225 اور یوسی 226 میں جو انتخابی عمل ہے اس کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا اور انتخابی عہدیداران کی سلیکشن کے بعد ان کی ذمہ داری کے حوالے سے جو حلف برداری ہے اس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا۔ میں آپ تمام ان لوگوں کو جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے آج کے دن حلف برداری کے موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو الیکشن کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اور آج اس حلقے کے اندر جب اس طرح کی میں ایکٹیویٹی دیکھتی ہوں تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھی اور آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 26 اگست کو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا اور اس میں بھی پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس دن بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ ملک کے اندر آئین کے مطابق الیکشن کرائے جائیں۔ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ لاہور میں بھی منعقد ہوئی اور اس میٹنگ میں ہم نے ایک بار پھر یہ تہیہ کیا کہ ہم پاکستان میں الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے۔ ہم ایک آواز ہو کر اس ملک میں ایک دن چاہتے ہیں کہ الیکشن منعقد ہو، جلد از جلد پاکستان کے اندر الیکشن ہو تاکہ عوام کو اپنے پسندیدہ، اپنے ہر دل عزیز جو ان کے نمائندے ہیں ان کو منتخب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس ملک کے اندر جمہوری عمل کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے قبرستان میں وہ شہداء ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا ہے؟ یہ آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف پاکستان تک اپنی قربانیوں کے لیے پہچانی نہیں جاتی بلکہ پوری دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے راہ میں دی گئی قربانیوں کے لیے پہچانی اور جانی جاتی ہے۔
मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कारकुन फैसल मीर को सलाम पेश करती हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आइंदा आने वाली यकीनन इलेक्शन के हवाले से फैसले होंगे वो तो हम सब लबैक करते हैं, लेकिन ये जज्बा कि लोगों को मोबिलाइज करो, ये जज्बा कि इलेक्शन के हवाले से जो तैयारी हम उमूमन देखते हैं कि इलेक्शन की डेट आने के बाद या इलेक्शन के कैंडिडेट्स अनाउंस होने के बाद की जाती है, फैसल मीर साहब ने जिस लगन के साथ उस पर फोकस किया है, यही वो रास्ता है जो हम सबको इख्तियार करना चाहिए। अपने हलकों में और अपने कारकुनान में और अपने ओहदेदारान में बैठकर इलेक्शन के ऊपर हमें जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाने की ज़रूरत है, उसकी एक अच्छी मिसाल फैसल मीर साहब ने यहाँ कायम की है। मुझे यकीन है कि पंजाब में जो तंजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो और भी हलकों में और भी जो हमारे कारकुनान हैं उनकी हौसला अफजाई करेगी, ताकि वो अपने अपने हलके में अपने अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको मुनज़्ज़म कर सके, उनको ऑर्गेनाइज कर सके। क्योंकि इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, कैंपेन होती है, और जो बहुत अहम दिन होता है वो पोलिंग का दिन होता है। पोलिंग के दिन अगर वर्कर्स को, पोलिंग एजेंट्स को, कैंपेन करने वालों को ये पता नहीं है कि इलेक्शन के जो कागजात हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो वोटिंग प्रोसेस है, या जो वोटर को लाने का अमल है वो किस तरीके से किया जाए, तो आपकी पूरी मेहनत मुतासिर हो सकती है। ये एक अच्छा अमल है जो फैसल मीर साहब ने यहाँ पर NA 127 में, और जिसके अंदर 3 सूबे, तकरीबन 2.5 सूबाई असम्बली की सीट्स लगती हैं, लेकिन हम इस वक्त PP 160 में हैं, और PP 160 के अंदर जो जिस तरीके की एक मैं समझती हूँ कि एक गुलदस्ता है जिसके अंदर मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जिस प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हमें लगता है कि फैसल मीर साहब ने इनकी ये जिस तरीके का एक अमन यहाँ पर है, जिस तरीके की भाईचारगी है, फैसल मीर साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर इंसान को, हर शख्स को, हर भाई को, बहन को, बुजुर्ग को अपने साथ रखा है, और पीपल्स पार्टी का जो बराबरी का फलसफा है वो सही मानों में इस हल्के में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। कितनी इज्जत दी है और पास्टर विल्सन असगर की मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। इस मौके पर चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद भी जनावाला गए, मैं इस मौके पर अपनी मसीही बरादरी, पाकिस्तान की मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उस घिनौने वाक़े की मज़म्मत करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तमाम अक़ीदत बरादरियों के साथ खड़ी है, एक होकर खड़ी है और उनकी वकालत कर रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और ये तभी होगा जब पूरे मुल्क में शहीद भुट्टो का फलसफा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा फैलेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये फैसल मीर की जिम्मेदारी है, ये कासिम गिलानी की जिम्मेदारी है, ये हुमा मीर की जिम्मेदारी है, ये आयशा की जिम्मेदारी है, और ये हमारे पास्टर विल्सन की जिम्मेदारी है कि हर घर में शहीद भुट्टो का फलसफा फैलाएं और पहुंचाएं। मैं इस मौके पर, चूंकि फैसल मीर साहब ने भी जिक्र किया और मुझे अफसोस हुआ है कि जो बयानबाजी की गई है पाकिस्तान
پیپلز پارٹی کے شہید قائد کے حوالے سے، اور اس طرح کی بیان بازی پہلے بھی لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے رہے ہیں، لیکن حالیہ جو ابھی بیان آیا ہے میں اس بیان کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد اس ملک میں میثاق جمہوریت ہونے کے بعد بھی اگر اس طرح کے گھٹیا بیانات آئیں تو اس ملک میں سیاستدانوں کے لیے پھر وہی رائے لوگ اختیار کریں گے جو ہم نہیں چاہتے لوگ اختیار کریں۔ جس طرح کی بدتمیزی، بد اخلاقی ہم نے آج دیکھی ہے، ہم اس فورم سے مذمت کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر میثاق جمہوریت پر دستخط کیے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ اس ملک میں سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈھونگ تھا تو آپ ہمیں بتا دیں، اگر وہ ناٹک تھا تو آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ ہمارے کارکن بھی جواب دینا جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے کارکنان کو بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں سکھاتے۔ یہ جمہوری کارکن ہیں، انہوں نے لہو دیا ہے، انہوں نے خون دیا ہے، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں آپ کی لیڈرشپ سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ اس گھٹیا سٹیٹمنٹ کا نوٹس لیں گے اور اس کا فوری طور پر کوئی سدباب ہمیں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں، جس میں جو ستلج دریا سے سیلاب برپا ہوا ہے، جس میں قصور، اوکاڑا، وہاڑی، بہاول نگر، پاک پتن، لودھراں، بہاول پور کے علاقے شامل ہیں، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات کی روشنی میں ہمارے سینئر کارکن اور لیڈر جناب چودھری منظور صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں اور ہر علاقے کا دورہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن یقینی طور پر ان لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک بار پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ جو موجودہ حکمران ہیں، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو ریلیف فراہم کرے، فوری طور پر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسسٹنس پرووائڈ کرے۔ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے، جیسے ہم نے 2022 کے فلڈز میں دیکھا جہاں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، ڈسپلیس ہوئے، وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے کی رقم تقسیم کی گئی، 28 لاکھ فیملیز کو 25,000 فی فیملی کے حساب سے یہ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی گئی۔ آج بھی یہ کیش اسسٹنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے، لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ کل کی ان کی پریس کانفرنس میں بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی روشنی میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے اندر اس مطالبے کا ذکر ہے، اور ہم ایک بار پھر اس حکومت کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بڑے بڑے فیصلے کرنا نہیں ہے، لیکن روزمرہ کے کام کاج کو چلانا ہے، اور جہاں کسی غریب کا آج نقصان ہوا ہے تو خدا را اس پر غور کریں اور فوری طور پر ان سیلاب متاثرین پنجاب میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کو فوری طور پر مدد فراہم کی جائے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے فلسفے کا، آپ سب جانتے ہیں، میرے ساتھ یہاں پر بہت سینئر کارکنان پیپلز پارٹی کے موجود ہیں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کے ایسے کارکنان ہیں جو اگر ہمیں اپنے تجربات اور اپنے چیلنجز کے بارے میں بتائیں تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ نالج ہے۔ اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہوتا ہے جماعت کا اثاثہ، کارکن ہمارا اثاثہ ہے، ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سوچ اور ہمارا نظریہ ہے اس کے مطابق طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اسی فلسفے کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि पंजाब के अंदर खास तौर पर एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कत्ल करने की, खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन फलसफा खत्म नहीं किया जा सकता। आप लोगों को तो शहीद कर सकते हैं, आप लोगों को तो मार सकते हैं, लेकिन फलसफे को आप ना मार सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। अगर आपने एक जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया तो हजारों, लाखों, करोड़ों भुट्टो पैदा हुए, और आज आपको ये भुट्टो भी खटकते हैं, लेकिन ये भुट्टो कहीं नहीं जा रहे। ये भुट्टो अपने कायद और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के फलसफे को आगे लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे, उसी हिम्मत, उसी बहादुरी के साथ जो हमारी रिवायत है। शहीदों का वारिस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब मैं बात करती हूँ बिलावल साहब की तो मुझे उनका वो विरसा भी याद आता है जो सिर्फ तकलीफों से भरा है, जिसने सिर्फ खून देखा है, जिसने सिर्फ लाशें देखी हैं। ऐसे ही चेयरमैन नहीं बना है बिलावल भुट्टो, और बहुत बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर के यहाँ पहुंचा है। यहाँ पर तो कोई उंगली नहीं कटाता, अगर 4 दिन किसी को थाने में रखा जाए तो उसको उसकी नानी याद आ जाती है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसा बहादुर नौजवान लीडर है जो हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करता है, दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। वजारत खारजा संभालने के बाद जिस तरीके से बिलावल साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की, वो अपने तई एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते नजर आए। हमें एक सैलाब का सामना था, और उस सैलाब में भी आपने देखा ये बिलावल भुट्टो की, ये उनकी मेहनत और उनकी मुस्तकिल जदोजहद का नतीजा था कि उस सैलाब के बाद फौरन पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए, मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान यहाँ आए, हमें लोगों ने हमारी मदद की, ममालिक ने हमारी मदद की, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान को आज एक मर्तबा फिर एक मजबूत लीडर की जरूरत है। पाकिस्तान को एक मजबूत आवाज की जरूरत है, एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो किसी मसलहत के तहत खामोश ना हो, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और वो आवाज है बिलावल भुट्टो जरदारी। साथियों, पाकिस्तान आज बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है, और यकीनन पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत सारे मसाइल हैं। जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई को देख लें, बेरोज़गारी को देख लें, गुर्बत को देख लें, ये ऐसे मसाइल हैं जिसका हम सबको मिलकर सामना करना है। हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं है, जिस तरह बिलावल साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं कि हम किसी शख्स से लड़ें या किसी जमात से लड़ें। हम तो ये चाहते हैं कि हम इस नासूर से लड़ें, हम महंगाई से लड़ें, हम गुर्बत से लड़ें, हम बेरोजगारी से लड़ें, हम बेबसी से लड़ें। और ये जंग है पीपल्स पार्टी की, और हम इसी जंग में यकीन रखते हैं। लेकिन आज किसी को लगता है कि पीपल्स पार्टी को निशाना बनाकर उनका कद बड़ा हो जाता है, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह का इजाफा हो रहा है, उसके बरक्स टारगेटेड रिलीफ नहीं दी जा रही लोगों को। हम देख रहे हैं कि महंगाई में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे हुए, लेकिन टारगेटेड रिलीफ गरीब आवाम को दी गई। आज इस तरह की कोई रिलीफ टारगेटेड नजर नहीं आ रही है। हम इस तरह की महंगाई पर यकीनन तशवीश का इजहार करते हैं। आज अगर पेट्रोल 330 या 332 रुपए है, तो इससे गरीब की, मुतवस्सित तबके की कमर टूट जाती है। और इस वक्त इस हुकूमत को यह देखना चाहिए कि जो सफेद पोश लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको किस तरीके से टारगेट करके रिलीफ फराहम की जाए। तो इस तकरीब के में होकर और मीडिया के मौजूदगी में मैं एक बार फिर इस मौजूदा केयर टेकर हुकूमत को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जितना अरसा आप हैं
और आप रोज की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और लोगों की कमर मजीद तोड़ रहे हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके का क्या हशर हो रहा है। इसके लिए भी आपको कोई ना कोई तरीक़ेकार, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क के मसाइल का, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क के मसाइल के लिए हम सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई ये समझता है कि हमें कुर्सी के मज़े लेने हैं, तो भाई ये कुर्सी में मज़े नहीं है, जिम्मेदारी होती है। लिहाजा पाकिस्तान में इत्तेहाद की, पाकिस्तान में यकजहती की ज़रूरत है। हमें मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सीरियसली पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत को देख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदगी से लोगों के मसाइल को देख रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के इजाफों को देख रही है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों में इजाफे को देख रही है। लिहाजा हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें इन मसाइल का मुकाबला करना है, इन मसाइल से लड़ना है। मैं इस फोरम पर आप तमाम लोगों की मौजूदगी में उन सियासी जमातों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए अपनी आपसी जो आप लोगों की लड़ाई है उसको छोड़ें और अवामी मसाइल पर गौर करें, अवाम की तकलीफ़ों पर गौर करें, गरीब की तकलीफ़ों पर गौर करें, मजदूर और किसान की तकलीफ़ पर गौर करें और अपनी सस्ती शोहरत को इस वक्त थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए हम मिलकर काम करने का अज़म करते हैं। हम समझते हैं कि इस हलके के अंदर जो एक हम आहंगी है, उस हम आहंगी को और भी दीगर हलकों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ मौजूद जो मसीही बरादरी है उनको भी ख़ास तौर पर यहाँ पर सलाम कहूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। वो शरपसंद अनासिर जो मुख्तलिफ वक्तों में इस प्यार मोहब्बत को ख़राब करने की, इस भाईचारगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो किसी मज़हब के दुश्मन नहीं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान के दुश्मनों को हमें शिकस्त देनी है। जिस तरीके से 9 मई को पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, ऐसी शरपसंदी को भी हमें शिकस्त देनी है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर अमन का गहवारा बने। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाए, कि लोग कहें कि पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और पाकिस्तान के आईन के अंदर जो अक़लियत के हुकूक हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर मिलने चाहिए। एक बार फिर फैसल मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो स्टेज पर मौजूद हैं, उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सब लोगों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन ये समझती हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन ख़ास तौर पे जो मीडिया की यहाँ प्रेजेंस है, मैं तमाम कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और चैनल्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस प्रोग्राम को, इस हल्के के प्रोग्राम को कवर करने यहाँ आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम यहाँ मौजूद पंडाल में हमारे जो पार्टी के कारकुनान हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि एक बार नारे का जवाब भरपूर दिया जाए ताकि आपके जोश और जज्बे का मुझे भी कुछ अंदाज़ा हो। मैं सिंध की एक कारकुन हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सांगड़ के हल्के में इलेक्शन लड़ती हूँ और हमने अपने परचम और नारे के ऊपर वो इलेक्शन जीता है। फ़लसफ़ा हमारी बुनियाद है और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पास फ़लसफ़ा है। लोगों के पास तो फ़लसफ़ा ही नहीं है, लोगों के पास तो नज़रिया ही नहीं है। जिस तरीके से जमातें बनी हैं वो हम सब जानते हैं, किस तरीके से ये जमातें बनी हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि इन जमातों में जमहूरियत हो। हम फिर भी जमहूरियत को फ़रोग़ देने में यकीन रखते हैं। नारा भुट्टो, नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा
مہربانی آپ بس صحیح شکریہ ادا کرتا ہوں لودھی صاحب ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سارے موجودین مہمان، میڈیا والے اور جتنے بھی دوست میرے بھائی اور بہن آئے ہیں، یہ سب کھانا کھا کے جائیں.